1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। ल्यूक 22 चैप्टर 1 वर्स से 38 वर्स। 1 सैमुअल 26 चैप्टर 27 चैप्टर 28 चैप्टर। 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय 1 से 38 वचन और 1 शमूएल 26 अध्याय 27 अध्याय और 28 अध्याय। इंग्लिश में जब पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे तब BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। ल्यूक 22 चैप्टर 1 वर्स से 38 वर्स तक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। द ज्यूस conspires against Christ. Judas covenanted to betray him. He instituted his holy supper, his agony in the garden. He healed Malchus' ear, etc. First verse. Now the feast of unleavened bread drew nigh, which is called the Passover. And the chief priests and scribes sought how they might kill him, for they feared the people. Then entered Satan into Judas, surnamed Iscariot, being of the number of the 12. And he went his way and communed with the chief priests and captains how he might betray him unto them. And they were glad and covenanted to give him money. And he promised and sought opportunity to betray him unto them in the absence of the multitude. Then came the day of unleavened bread, when the Passover must be killed. And he sent Peter and John, saying, Go and prepare us the Passover, that we may eat. And they said unto him, Where wilt thou that we prepare? And he said unto them, Behold, when ye are entered into the city, there shall a man meet you, bearing a pitcher of water. Follow him into the house where he entereth in, and ye shall say unto the good man of the house, The master saith unto thee, Where is the guest chamber where I shall eat the Passover with my disciples? And he shall shew you a large upper room furnished there. Make ready. And they went and found as he had said unto them, and they made ready the Passover. And when the hour was come, he sat down, and the 12 apostles with him. And he said unto them, 15th verse से आगे, and he said unto them, With a desire I have desired to eat this Passover with you before I suffer. 16th verse से आगे, For I say unto you, I will not any more eat thereof until it be fulfilled in the kingdom of God. And he took the cup and gave thanks and said, Take this and divide it among yourselves. For I say unto you, I will not drink of the fruit of the vine until the kingdom of God shall come. And he took bread and gave thanks and brake it and gave unto them, saying, This is my body, which is given for you. This do in remembrance of me. Likewise also the cup after supper, saying, This cup is the New Testament in my blood, which is shed for you. But behold, the hand of him that betrayeth me is with me on the table. And truly the Son of Man goeth as it was determined, but woe unto that man by whom he is betrayed. And they began to inquire among themselves which of them it was that should do this thing. And there was also a strife among them, which of them should be accounted the greatest. And he said unto them, The kings of the Gentiles exercise lordship over them, and they that exercise authority upon them are called benefactors. और एक बार पढ़ेंगे 25 वर्स. And he said unto them,
24 वर्स पढ़ेंगे पहले. And there was also a strife among them, which of them should be accounted the greatest. And he said unto them, The kings of the Gentiles exercise lordship over them, and they that exercise authority upon them are called benefactors. 26 verse. But ye shall not be so, but he that is greatest among you, let him be as the younger, and he that is chief as he that doeth serve. For whether is greater he that sitteth at meat or he that serveth? Is not he that sitteth at meat? But I am among you as he that serveth. Ye are they which have continued with me in my temptations, and I appoint unto you a kingdom, as my Father hath appointed unto me, that ye may eat and drink at my table in my kingdom, and sit on thrones judging the 12 tribes of Israel. And the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you, that he may sift you as wheat. But I have prayed for thee, that thy faith fail not, and when thou art converted, strengthen thy brethren. और एक बार पढ़ेंगे 28 वर्स से. ये आर दे विच हैव कंटिन्यूड विथ मी इन माई टेम्पटेशंस, एंड आई अपॉइंट unto you a kingdom, as my Father hath appointed unto me, that ye may eat and drink at my table in my kingdom, and sit on thrones judging the 12 tribes of Israel. 31 verse. And the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you, that he may sift you as wheat. But I have prayed for thee, that thy faith fail not. 32 verse. But I have prayed for thee, that thy faith fail not, and when thou art converted, strengthen thy brethren. 33 verse. And he said unto him, Lord, I am ready to go with thee both into prison and to death. And he said, I tell thee, Peter, the cock shall not crow this day before that thou shalt thrice deny that thou knowest me. And he said unto them, When I sent you without purse and scrip and shoes, lacked ye anything? And they said, Nothing. Then said he unto them, But now he that hath a purse, let him take it, and likewise his scrip, and he that hath no sword, let him sell his garment and buy one. For I say unto you, that this that is written must yet be accomplished in me. And he was reckoned among the transgressors, for the things concerning me have an end. एक बार और पढ़ेंगे 33 वर्स से. एंड ही सेड अनटू हिम, लॉर्ड, आई एम रेडी टू गो विद thee both into prison and to death. 34 वर्स से आगे. एंड ही सेड, I tell thee, Peter, the cock shall not crow this day before that thou shalt thrice deny that thou knowest me. 35 verse से आगे. And he said unto them, When I sent you without purse and scrip and shoes, lacked ye anything? And they said, Nothing. Then said he unto them, But now he that hath a purse, let him take it, and likewise his scrip, and he that hath no sword, let him sell his garment and buy one. For I say unto you, that this that is written must yet be accomplished in me. And he was reckoned among the transgressors, for the things concerning me have an end. और एक बार पढ़ेंगे 37 वर्स. फॉर आई से unto you that this that is written must yet be accomplished in me. And he was reckoned among the transgressors, for the things concerning me have an end.
Okay. 38 verse. And they said, Lord, behold, here are two swords. And he said unto them, It is enough. लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय 1 वचन से 38 वचन तक पढ़ेंगे। यीशु के विरुद्ध षड्यंत्र। 22 अध्याय पहले वचन से। अखमीरी रोटी का पर्व जो फसह कहलाता है निकट था, और प्रधान याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसको कैसे मार डालें, पर वे लोगों से डरते थे। यहूदा का विश्वासघात 3 वचन से आगे। तब शैतान यहूदा में समाया, जो इस्करियोती कहलाता और 12 चेलों में गिना जाता था। उसने जाकर प्रधान याजकों और पहरुओं के सरदारों के साथ बातचीत की कि उसको किस प्रकार उनके हाथ पकड़वाए। वे आनंदित हुए और उसे रुपये देने का वचन दिया। उसने मान लिया और अवसर ढूंढने लगा कि जब भीड़ न हो तो उसे उनके हाथ पकड़वा दे। चेलों के साथ फसह का अंतिम भोज 7 वचन से आगे। तब अखमीरी रोटी के पर्व का दिन आया, जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। नौ वचन से आगे। उन्होंने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम इसे तैयार करें? उसने उनसे कहा, देखो, नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। जिस घर में वह जाए, तुम उसके पीछे चले जाना और उस घर के स्वामी से कहना, गुरु तुझसे कहता है कि वह पहुनशाला कहाँ है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं। वह तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी अटारी दिखा देगा, वही तैयारी करना। उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। प्रभु भोज 14 वचन से आगे। जब घड़ी आ पहुंची। प्रभु भोज 14 वचन से आगे। जब घड़ी आ पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा, और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा न हो, तब तक मैं उसे कभी न खाऊंगा। जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा न हो, तब तक मैं उसे कभी न खाऊंगा। और एक बार पढ़ेंगे 16 वचन। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा न हो, तब तक मैं उसे कभी न खाऊंगा। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक परमेश्वर का राज्य न आए, तब तक मैं दाख का रस अब से कभी न पीऊँगा।
और एक बार पढ़ेंगे 16 वचन। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा न हो तब तक मैं उसे कभी न खाऊंगा। 17 वचन आगे। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो। 18 वचन से आगे। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक परमेश्वर का राज्य न आए तब तक मैं दाख का रस अब से कभी न पीऊँगा। 19 वचन से आगे। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। 20 वचन से आगे। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। पर देखो मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है। क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके लिए ठहराया गया जाता ही है। क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके लिए ठहराया गया जाता ही है। वह पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा वह पकड़वाया जाता है। तब वे आपस में पूछताछ करने लगे कि हम में से कौन है जो यह काम करेगा, महान कौन। पर वाद विवाद 24 वचन से आगे। उनमें यह वाद विवाद भी हुआ कि उनमें से कौन बड़ा समझा जाता है। उसने उनसे कहा, अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं और जो उन पर अधिकार रखते हैं वे उपकारक कहलाते हैं। परंतु तुम ऐसे न होना, वरन जो तुम में बड़ा है वह छोटे के समान और जो प्रधान है वह सेवक के समान बने। क्योंकि बड़ा कौन है, वह जो भोजन पर बैठा है या वह जो सेवा करता है? क्या वह नहीं जो भोजन पर बैठा है? परंतु मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूँ। 28 वचन से आगे। तुम वह हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो, वरन सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करो। पतरस के इनकार की भविष्यवाणी 31 वचन से आगे। शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदी गृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूँ। 34 वचन से आगे। उसने कहा, हे पतरस, मैं तुझसे कहता हूँ कि आज मुर्ग बांग न देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार न कर लेगा कि तू मुझे नहीं जानता। बटुआ, झोली और तलवार 35 वचन से आगे। फिर उसने उनसे कहा, जब मैंने तुम्हें बटुए और झोली और जूते बिना भेजा था तो क्या तुमको किसी वस्तु की घटी हुई थी? उन्होंने कहा, किसी वस्तु की नहीं। उसने उनसे कहा, परंतु अब जिसके पास बटुआ हो वह उसे ले, और वैसे ही झोली भी, और जिसके पास तलवार न हो वह अपने कपड़े बेचकर एक मोल ले। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यह जो लिखा है वह अपराधियों के साथ गिना गया, उसका मुझ में पूरा होना अवश्य है, क्योंकि मेरे विषय में लिखी बातें पूरी होने पर है। 38 वचन। उन्होंने कहा, हे प्रभु, देख यहाँ 2 तलवारें हैं। उसने उनसे कहा, बहुत है। 1 सैमुएल 26 चैप्टर, 27 चैप्टर और 28 चैप्टर। पहले हम 26 चैप्टर से पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से। Saul comes to the hill of Hakila against David. David stays
Abishai from killing Saul, but takes his spear cross. First verse say, and the Ziphites came unto Saul to Gibeah, saying, Doth not David hide himself in the hill of Hakilah, which is before Jeshimon? Then Saul arose and went down to the wilderness of Ziph, having 3,000 chosen men of Israel with him. To seek David in the wilderness of Ziph. And Saul pitched in the hill of Hakilah, which is before Jeshimon by the way. But David abode in the wilderness, and he saw that Saul came after him into the wilderness. David therefore sent out spies and understood that Saul was come in very deed. And David arose and came to the place where Saul had pitched. And David beheld the place where Saul lay, and Abner the son of Ner, the captain of his host. And Saul lay in the trench, and the people pitched round about him. Then answered David and said to Ahimelech the Hittite, and to Abishai the son of Zeruiah, brother of Joab, saying, Who will go down with me to Saul to the camp? And Abishai said, I will go down with thee. So David and Abishai came to the people by night, and behold, Saul lay sleeping within the trench, and his spear stuck in the ground at his bolster, but Abner and the people lay round about him. Then said Abishai to David, God hath delivered thine enemy into thine hand this day. Now therefore let me smite him, I pray thee, with the spear even to the earth at once, and I will not smite him the second time. And David said to Abishai, Destroy him not, for who can stretch forth his hand against the Lord's anointed and be guiltless? Thank you, Jesus. David said furthermore, as the Lord liveth, the Lord shall smite him, or his day shall come to die, or he shall descend into battle and perish. The Lord forbid that I should stretch forth mine hand against the Lord's anointed. But I pray thee, take thou now the spear that is at his bolster, and the cruse of water, and let us go. So David took the spear and the cruse of water from Saul's bolster, and they gat them away, and no man saw it, nor knew it, neither awaked, for they were all asleep, because a deep sleep from the Lord was fallen upon them. Hallelujah! 13th verse. Then David went over to the other side and stood on the top of an hill afar off, a great space being between them. And David cried to the people and to Abner the son of Ner, saying, Answerest thou not, Abner? Then Abner answered and said, Who art thou that criest to the king? And David said to Abner, Art not thou a valiant man? And who is like to thee in Israel? Wherefore then hast thou not kept thy lord the king? For there came one of the people in to destroy the king thy lord. This thing is not good that thou hast done. As the Lord liveth, ye are worthy to die, because ye have not kept your master, the Lord's anointed. And now see where the king's spear is, and the cruse of water that was at his bolster. And Saul knew David's voice, and said, Is this thy voice, my son David? And David said, It is my voice, my lord, O king. And he said, Wherefore doeth my lord thus pursue after this servant?
for his servant, for what have I done, or what evil is in mine hand? Now therefore I pray thee, let my lord the king hear the words of his servant. If the Lord have stirred thee up against me, let him accept an offering. But if they be the children of men, cursed be they before the Lord, for they have driven me out of this day from abiding in the inheritance of the Lord, saying, Go serve other gods. Now therefore let not my blood fall to the earth before the face of the Lord, for the king of Israel is come out to seek a flea, as when one doth hunt a partridge in the mountains. Then said Saul, I have sinned. Return, my son David, for I will no more do thee harm, because my soul was precious in thine eyes this day. Behold, I have played the fool and have erred exceedingly. And David answered and said, Behold the king's spear, and let one of the young men come over and fetch it. The Lord render to every man the Lord render to every man his righteousness and his faithfulness, for the Lord delivered thee into my hand today. But I would not stretch forth mine hand against the Lord's anointed. And behold, as thy life was much set by this day in mine eyes, so let my life be much set by in the eyes of the Lord, and let him deliver me out of all tribulation. Then Saul said to David, Blessed be thou, my son David. Thou shalt both do great things, and so shalt still prevail. So David went on his way, and Saul returned to his place. Chapter 7. Saul, hearing that David was fled to Gath, seeks no more for him. David begs Ziklag of Achish, first verse. And David said in his heart, I shall now perish one day by the hand of Saul. There is nothing better for me than that I should speedily escape into the land of the Philistines, and Saul shall despair of me to seek me any more in any coast of Israel. So shall I escape out of his hand. And David arose, and he passed over with the 600 men that were with him unto Achish the son of Mawok, king of Gath. And David dwelt with Achish at Gath, he and his men, every man with his household, even David with his 2 wives, Ahinoam the Jezreelitess, and Abigail the Carmelitess, Nabal's wife. And it was told Saul that David was fled to Gath, and he sought no more again for him. And David said unto Achish, If I have now found grace in thine eyes, let them give me a place in some town in the country, that I may dwell there. For why should thy servant dwell in the royal city with thee? Then Achish gave him Ziklag that day. Wherefore Ziklag pertaineth unto the kings of Judah unto this day. And the time that David dwelt in the country of the Philistines was a full year and 4 months. And David and his men went up and invaded the Geshurites and the Gezrites and the Amalekites, for those nations were of old the inhabitants of the land, as thou goest to Shur, even unto the land of Egypt. And David smote the land, and left neither man nor woman alive, and took away the sheep and the oxen, and the asses, and the camels, and the apparel, and returned and came to Achish. And Achish said, Whither have ye made a road today? And David said, Against the south of Judah, and against the south of the Jerahmeelites, and against the south of the Kenites. And David saved neither man nor woman alive, to bring tidings to Gath, saying, Lest they should tell on us, saying,
So did David, and so will be his manner all the while. He dwelleth in the country of the Philistines. And Achish believed David, saying, He hath made his people Israel utterly to abhor him, therefore he shall be my servant forever. Chapter 28. Achish's confidence in David. Saul seeks to a witch who, being encouraged by him, raises up Samuel. Saul, hearing his ruin, finds he is refreshed with meat. First verse. And it came to pass in those days that the Philistines gathered their armies together for warfare to fight with Israel. And Achish said unto David, Know thou assuredly that thou shalt go out with me to battle, thou and thy men. And David said to Achish, Surely thou shalt know what thy servant can do. And Achish said to David, Therefore will I make thee keeper of mine head forever. Now Samuel was dead, and all Israel had lamented him, and buried him in Ramah, even in his own city. And Saul had put away those that had familiar spirits and the wizards out of the land. And the Philistines gathered themselves together and came and pitched in Shunem. And Saul gathered all Israel together, and they pitched in Gilboa. And when Saul saw the host of the Philistines, he was afraid, and his heart greatly trembled. And when Saul inquired of the Lord answered him not, neither by dreams, nor by Urim, nor by prophets. Then said Saul unto his servants, Seek me a woman that hath a familiar spirit, that I may go to her and inquire to her. And his servants and said to him, Behold, there is a woman that hath a familiar spirit at Endor. And Saul disguised himself, and put on another raiment, and he went, and two men with him, and they came to the woman by night. And he said, I pray thee, divine unto me by the familiar spirit, and bring me him up, whom I shall name unto thee. And the woman said unto him, Behold, thou knowest what Saul hath done, how he hath cut off those that have familiar spirits and the wizards out of the land. Wherefore then layest thou a snare for my life, to cause me to die? And Saul sware to her by the Lord, saying, As the Lord liveth, there shall no punishment happen to thee for this thing. Then said the woman, Whom shall I bring up unto thee? And he said, Bring me up Samuel. And when the woman saw Samuel, she cried with a loud voice. And the woman spake to Saul, saying, Why hast thou deceived me? For thou art Saul. And the king said unto her, Be not afraid, for what sawest thou? And the woman said unto Saul, I saw gods ascending out of the earth. And he said unto her, What form is he of? And she said, An old man cometh up, and he is covered with a mantle. And Saul perceived that it was Samuel, and he stooped with his face to the ground, and bowed himself. And Samuel said to Saul, Why hast thou disquieted me to bring me up? And Saul answered, I am sore distressed, for the Philistines make war against me. And God is departed from me, and answereth me no more, neither by prophets nor by dreams. Therefore I have called thee, that thou mayest make known unto me what I shall do. Then said Samuel, Wherefore then dost thou ask of me, seeing the Lord is departed from thee, and is become thine enemy?
and the Lord hath done to him as he spake by me. For the Lord hath rent the kingdom out of thine hand, and given it to thy neighbor, even to David, because thou obeyest not the voice of the Lord, nor executest his fierce wrath upon Amalek. Therefore hath the Lord done this thing unto thee this day. Moreover, the Lord will also deliver Israel with thee into the hand of the Philistines, and tomorrow shalt thou and thy sons be with me. The Lord also shall deliver the host of Israel into the hand of the Philistines. Then Saul fell straightway all along on the earth, and was sore afraid because of the words of Samuel, and there was no strength in him, for he had eaten no bread all the day, nor all the night. And the woman came unto Saul, and saw that he was sore troubled, and said unto him, Behold, thine handmaid hath obeyed thy voice, and I have put my life in my hand, and have hearkened unto thy words, which thou spakest unto me. Now therefore I pray thee, hearken thou also unto the voice of thine handmaid, and let me set a morsel of bread before thee, and eat, that thou mayest have strength when thou goest on thy way. But he refused, and said, I will not eat. But his servants together with the woman compelled him, and he hearkened unto their voice. So he arose from the earth, and sat upon the bed. And the woman had a fat calf in the house, and she has hasted and killed it, and took flour and kneaded it, and did bake unleavened bread thereof. And she brought it before Saul and before his servants. They did eat. Then they arose up and went away that night. पहला शमूएल 26, 27 और 28 अध्याय हिंदी में पढ़ेंगे। बीएसआई बाइबल में से। दाऊद का शाऊल के प्राण पुनः छोड़ना। फिर जीपी लोग गिबा में शाऊल के 26 अध्याय पहले वचन से पढ़ रहे। फिर जीपी लोग गिबा में शाऊल के पास जाकर कहने लगे, क्या दाऊद उस हकीला नामक पहाड़ी पर जो यशीमोन के सामने है छिपा नहीं रहता? तब शाऊल उठकर इस्राएल के 3,000 छांटे हुए योद्धा संग लिए हुए गया कि दाऊद को जीप के जंगल में खोजे। और शाऊल ने अपनी छावनी मार्ग के पास हकीला नामक पहाड़ी पर जो यशीमोन के सामने है डाली, परंतु दाऊद जंगल में रहा, और उसने जान लिया कि शाऊल मेरा पीछा करने को जंगल में आया है। तब दाऊद ने भेदियों को भेजकर निश्चय कर लिया कि शाऊल सचमुच आ गया है। तब दाऊद उठकर उस स्थान पर गया जहाँ शाऊल पड़ा था, और दाऊद ने उस स्थान को देखा जहाँ शाऊल अपने सेनापति नेर के पुत्र अब्नेर समेत पड़ा था। शाऊल तो गाड़ियों की आड़ में पड़ा था, और उसके लोग उसके चारों ओर डेरे डाले हुए थे। तब दाऊद ने हित्ती अहीमेलेक और सरूयाह के पुत्र योआब के भाई अबीशै से कहा, मेरे साथ उस छावनी में शाऊल के पास कौन चलेगा? अबीशै ने कहा, तेरे साथ मैं चलूँगा। अतः दाऊद और अबीशै रातों रात उन लोगों के पास गए, और क्या देखते हैं कि शाऊल गाड़ियों की आड़ में पड़ा सो रहा है, और उसका भाला उसके सिरहाने भूमि में गड़ा है, और अब्नेर और योद्धा लोग उसके चारों ओर पड़े हुए हैं। तब अबीशै ने दाऊद से कहा, परमेश्वर ने आज तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दिया है, इसलिए अब मैं उसको एक बार ऐसा मारूं कि भाला उसे बेधता हुआ भूमि में धंस जाए, और मुझको उसे दूसरी बार मारना न पड़ेगा। दाऊद ने अबीशै से कहा, उसे नष्ट न कर, क्योंकि यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है? फिर दाऊद ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, यहोवा ही उसको मारेगा, या वह अपनी मृत्यु से मरेगा, या वह लड़ाई में जाकर मर जाएगा। यहोवा न करे कि मैं अपना हाथ यहोवा के अभिषिक्त पर उठाऊं। अब उसके सिरहाने से भाला और पानी की सुराही उठा ले, और हम यहाँ से
चले जाए। तब दाऊद ने भाले और पानी की सुराही को शाऊल के सिरहाने से उठा लिया और वे चले गए। किसी ने इसे न देखा न जाना और न कोई जागा, क्योंकि वे सब इस कारण सोए हुए थे कि यहोवा की ओर से उनमें भारी नींद समा गई थी। 13 वचन से आगे, तब दाऊद दूसरी ओर जाकर दूर के पहाड़ की चोटी पर खड़ा हुआ और दोनों के बीच बड़ा अंतर था। और दाऊद ने उन लोगों को और नेर के पुत्र अबनेर को पुकार के कहा, हे अबनेर, क्या तू नहीं सुनता? अबनेर ने उत्तर देकर कहा, तू कौन है जो राजा को पुकारता है? दाऊद ने अबनेर से कहा, क्या तू पुरुष नहीं है? इज़राइल में तेरे तुल्य कौन है? तूने अपने स्वामी राजा की चौकसी क्यों नहीं की? एक जन तो तेरे स्वामी राजा को नष्ट करने घुसा था। जो काम तूने किया है वह अच्छा नहीं। यहोवा के जीवन की शपथ, तुम लोग मारे जाने के योग्य हो, क्योंकि तुमने अपने स्वामी यहोवा के अभिषिक्त की चौकसी नहीं की। अब देख, राजा का भाला और पानी की सुराही जो उसके सिरहाने थी, वे कहाँ है? 17 वचन से आगे, तब शाऊल ने दाऊद का बोल पहचान कर कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, क्या यह तेरा बोल है? दाऊद ने कहा, हाँ मेरे प्रभु राजा, मेरा ही बोल है। फिर उसने कहा, मेरा प्रभु अपने दास का पीछा क्यों करता है? मैंने क्या किया है और मुझसे कौन सी बुराई हुई है? अब मेरा प्रभु राजा अपने दास की बातें सुन ले। यदि यहोवा ने तुझे मेरे विरुद्ध उकसाया हो, तब तो वह भेंट ग्रहण करे, परंतु यदि आदमियों ने ऐसा किया हो तो वे यहोवा की ओर से शापित हो, क्योंकि उन्होंने अब मुझे निकाल दिया कि मैं यहोवा के निज भाग में न रहूं। और उन्होंने कहा है, जा पराए देवताओं की उपासना कर। इसलिए अब मेरा लहू यहोवा की आंखों की ओट में। मैंने क्या किया है और मुझसे कौन सी बुराई हुई है? 19 वचन और एक बार पढ़ेंगे। अब मेरा प्रभु राजा, अपने दास की बातें सुन लो। यदि यहोवा ने तुझे मेरे विरुद्ध उकसाया हो, तब तो वह भेंट ग्रहण करे, परंतु यदि आदमियों ने ऐसा किया हो तो वे यहोवा की ओर से शापित हो, क्योंकि उन्होंने अब मुझे निकाल दिया कि मैं यहोवा के निज भाग में न रहूं। और उन्होंने कहा है, जा पराई देवताओं की उपासना कर। इसलिए अब मेरा लहू यहोवा की आंखों की ओट में भूमि पर न बहने पाए। इस्राएल का राजा तो एक पिस्सू ढूंढने आया है, जैसा कि कोई पहाड़ों पर तितर का आहेर करे। 21 वचन से आगे, शाऊल ने कहा, मैंने पाप किया है। हे मेरे बेटे दाऊद, लौट आ। मेरा प्राण आज के दिन तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरा। इस कारण मैं फिर तेरी कुछ हानि न करूँगा। सुन, मेरा प्राण आज के दिन तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरा, इस कारण मैं फिर तेरी कुछ हानि न करूँगा। सुन, मैंने मूर्खता की और मुझसे बड़ी भूल हुई है। 22 वचन से आगे, दाऊद ने उत्तर देकर कहा, हे राजा, भाले को देख, कोई जवान इधर आकर इसे ले जाए। यहोवा एक एक को अपने अपने धर्म और सच्चाई का फल देगा। देख, आज यहोवा ने तुझको मेरे हाथ में कर दिया था, परंतु मैंने यहोवा के अभिषिक्त पर अपना हाथ उठाना उचित न समझा। इसलिए जैसे तेरे प्राण आज मेरी दृष्टि में प्रिय ठहरे, वैसे ही मेरे प्राण भी यहोवा की दृष्टि में प्रिय ठहरे, और वह मुझे समस्त विपत्तियों से छुड़ाए। शाऊल ने दाऊद से कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, तू धन्य है, तू बड़े बड़े काम करेगा और तेरे काम सफल होंगे। तब दाऊद ने अपना मार्ग लिया और शाऊल भी अपने स्थान को लौट गया।
दाऊद का पलिश्तियों के यहाँ शरण लेना। 27 अध्याय पहले वचन से। तब दाऊद सोचने लगा, अब मैं किसी न किसी दिन शाऊल के हाथ से नष्ट हो जाऊंगा। अब मेरे लिए उत्तम यह है कि मैं पलिश्तियों के देश में भाग जाऊं। तब शाऊल मेरे विषय निराश होगा और मुझे इस्राएल के देश के किसी भाग में फिर न ढूंढेगा। यूं मैं उसके हाथ से बच निकलूंगा। तब दाऊद अपने 600 संगी पुरुषों को लेकर चला गया और गत के राजा मावोक के पुत्र आकीश के पास गया। और दाऊद और उसके जन अपने अपने परिवार समेत गत में आकीश के पास रहने लगे। दाऊद अपनी 2 स्त्रियों के साथ अर्थात यजरेली अहीनोअम और नाबाल की स्त्री कर्मेली अबीगेल के साथ रहा। जब शाऊल को यह समाचार मिला कि दाऊद गत को भाग गया है, तब उसने उसे फिर कभी न ढूंढा। दाऊद ने अकीश से कहा, यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो देश की किसी बस्ती में मुझे स्थान दिला दे, जहाँ मैं रहूं। तेरे दास तेरे साथ राजधानी में क्यों रहे। दाऊद ने अकीश से कहा, यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो देश की किसी बस्ती में मुझे स्थान दिला दे, जहाँ मैं रहूं। तेरा दास तेरे साथ राजधानी में क्यों रहे। तब आकीश ने उसे उसी दिन सिकलग बस्ती दी। इस कारण से सिकलग आज के दिन तक यहूदा के राजाओं का बना है। सात वचन से आगे। पलिश्तियों के देश में रहते रहते दाऊद को 1 वर्ष 4 महीने बीत गए और दाऊद ने अपने जनों समेत जाकर गशूरियों, गिरजियों और अमालेकियों पर चढ़ाई की। ये जातियां तो प्राचीन काल से उस देश में रहती थी जो शूर के मार्ग में मिस्र देश तक है। दाऊद ने उस देश को नष्ट किया और स्त्री पुरुष किसी को जीवित न छोड़ा और भेड़ बकरी गाय बैल गदहे ऊंट और वस्त्र लेकर लौटा और अकीश के पास गया। 10 वचन से आगे। अकीश ने पूछा, आज तुमने चढ़ाई तो नहीं की। दाऊद ने कहा, हाँ, यहूदा यरहमेलिया और केनियों के दक्षिण दिशा में। दाऊद ने स्त्री पुरुष किसी को जीवित न छोड़ा कि उन्हें गत में पहुंच जाए। उसने सोचा था, ऐसा न हो कि वे हमारा काम बताकर यह कहे कि दाऊद ने ऐसा ऐसा किया है। वरन जब से वह पलिश्तियों के देश में रहता है, तब से उसका काम ऐसा ही है। तब अकीश ने दाऊद की बात सच मानकर कहा, यह अपने इस्राएली लोगों की दृष्टि में अति घृणित हुआ है, इसलिए यह सदा के लिए मेरा दास बना रहेगा। 28 अध्याय पहले वचन से। उन दिनों में पलिश्तियों ने इस्राएल से लड़ने के लिए अपनी सेना इकट्ठी की। तब अकीश ने दाऊद से कहा, निश्चय जान कि तुझे अपने जनों समेत मेरे साथ सेना में जाना होगा। दाऊद ने अकीश से कहा, इस कारण तू जान लेगा कि तेरा दास क्या करेगा। अकीश ने दाऊद से कहा, इस कारण मैं तुझे अपने सिर का रक्षक सदा के लिए ठहराऊंगा। एक बार और पढ़ेंगे 28 अध्याय पहले वचन से। उन दिनों में पलिश्तियों ने इस्राएल से लड़ने के लिए अपनी सेना इकट्ठी की। तब अकीश ने दाऊद से कहा, निश्चय जान कि तुझे अपने जनों समेत मेरे साथ सेना में जाना होगा। दाऊद ने अकीश से कहा, इस कारण तू जान लेगा कि तेरा दास क्या करेगा। हालेलुया, धन्यवाद हो मेरे खुदा परमेश्वर। अकीश ने दाऊद से कहा, इस कारण मैं तुझे अपने सिर का रक्षक सदा के लिए ठहराऊंगा।
शाऊल और भूत सिद्धि करने वाली स्त्री। 3 वचन से आगे, शमूएल तो मर गया था और समस्त इस्राएलियों ने उसके विषय छाती पीटी और उसको उसके नगर रामा में मिट्टी दी थी। और शाऊल ने ओझों और भूत सिद्धि करने वालों को देश से निकाल दिया था। 4 वचन से आगे, 4 वचन से आगे, जब पलिश्ती इकट्ठे हुए और शूनेम में छावनी डाली तो शाऊल ने सब इस्राएलियों को इकट्ठा किया और उन्होंने गिलबो में छावनी डाली। पलिश्तियों की सेना को देखकर शाऊल डर गया और उसका मन अत्यंत भयभीत हो कांप उठा। और एक बार पढ़ेंगे 4 वचन। जब पलिश्ती इकट्ठे हुए और शूनेम में छावनी डाली तो शाऊल ने सब इस्राएलियों को इकट्ठा किया और उन्होंने गिलबो में छावनी डाली। पलिश्तियों की सेना को देखकर शाऊल डर गया और उसका मन अत्यंत भयभीत हो कांप उठा। जब शाऊल ने यहोवा से पूछा तब यहोवा ने न तो स्वप्न के द्वारा उसे उत्तर दिया और न उरीम के द्वारा और न भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा। तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाले को ढूंढो कि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, इंदौर में एक भूत सिद्धि करने वाली रहती है। तब शाऊल ने अपना भेष बदला और कपड़े पहनकर 2 मनुष्य संग लेकर रातों रात चलकर उस स्त्री के पास गया और कहा, अपने सिद्धि भूत से मेरे लिए भावी कहलवा और जिसका नाम मैं लूँगा उसे बुलवा दे। स्त्री ने उससे कहा, तू जानता है कि शाऊल ने क्या किया है, कि उसने ओझों और भूत सिद्धि करने वालों को देश से नाश किया है। फिर तू मेरे प्राण के लिए क्यों फंदा लगाता है कि मुझे मरवा डाले। शाऊल ने यहोवा की शपथ खाकर उससे कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, इस बात के कारण तुझे दंड न मिलेगा। तब स्त्री ने पूछा, मैं तेरे लिए किसको बुलाऊं? उसने कहा, शमूएल को मेरे लिए बुला। जब स्त्री ने शमूएल को देखा तब ऊंचे शब्द से चिल्लाई और शाऊल से कहा, तूने मुझे क्यों धोखा दिया? तू तो शाऊल है। राजा ने उससे कहा, मत डर, तुझे क्या देख पड़ता है? स्त्री ने शाऊल से कहा, मुझे एक देवता पृथ्वी में से चढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। उसने उससे पूछा, उसका कैसा रूप है? उसने कहा, एक बूढ़ा पुरुष बागा ओढ़े हुए चढ़ा आता है। तब शाऊल ने निश्चय जानकर कि वह शमूएल है, औंधे मुँह भूमि पर गिर के दंडवत किया। शमूएल ने शाऊल से पूछा, तूने मुझे ऊपर बुलवा कर क्यों सताया है? शाऊल ने कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूँ, क्योंकि पलिश्ती मेरे साथ लड़ रहे हैं और परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया और अब मुझे न तो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा उत्तर देता है और न स्वप्नों के। इसलिए मैंने तुझे बुलाया कि तू मुझे जता दे कि मैं क्या करूं। शमूएल ने कहा, जब यहोवा तुझे छोड़कर तेरे शत्रु बन गया तब तू मुझसे क्यों पूछता है? यहोवा ने तो जैसा मुझसे कहलवाया था वैसा ही उसने व्यवहार किया है, अर्थात उसने तेरे हाथ से राज्य छीन कर तेरे पड़ोसी दाऊद को दे दिया है। तूने जो यहोवा की बातें न मानी और न अमालेकियों को उसके भड़के हुए कोप के अनुसार दंड दिया था, इस कारण यहोवा ने तुझसे आज ऐसा बर्ताव किया। फिर यहोवा तुझ समेत इस्राएलियों को पलिश्तियों के हाथ में कर देगा और तू अपने बेटों समेत कल मेरे साथ होगा।
हालेलुया। और इस्राएल सेना को भी यहोवा पलिश्तियों के हाथ में कर देगा। और एक बार पढ़ेंगे 17 वचन से आगे। यहोवा ने तो जैसा मुझसे कहलवाया था वैसा ही उसने व्यवहार किया है, अर्थात उसने तेरे हाथ से राज्य छीनकर तेरे पड़ोसी दाऊद को दे दिया है। तूने जो यहोवा की बात न मानी और न अमालेकियों को उसके भड़के हुए कोप के अनुसार दंड दिया था, इस कारण यहोवा ने तुझसे आज ऐसा बर्ताव किया। फिर यहोवा तुझ समेत इस्राएलियों को पलिश्तियों के हाथ में कर देगा और तू अपने बेटों समेत कल मेरे साथ होगा। और इस्राएल सेना को भी यहोवा पलिश्तियों के हाथ में कर देगा। तब शाऊल तुरंत मुंह के बल भूमि पर गिर पड़ा और शमूएल की बातों के कारण अत्यंत डर गया। उसने पूरे दिन और रात भोजन न किया था, इससे उसमें बल कुछ भी न रहा। हालेलुया। तब वह स्त्री शाऊल के पास गई और उसको अति व्याकुल देखकर उसने कहा, सुन, तेरी दासी ने तो तेरी बात मानी और मैंने अपने प्राण पर खेल कर तेरे वचनों को सुन लिया जो तूने मुझसे कहा। तो अब तू भी अपनी दासी की बात मान और मैं तेरे सामने एक टुकड़ा रोटी रखूं, तू उसे खा कि जब तू अपना मार्ग ले तब तुझे बल आ जाए। उसने इनकार करके कहा, मैं न खाऊंगा। परंतु उसके सेवकों और स्त्री ने मिलकर यहाँ तक उसे दबाया कि वह उनकी बात मानकर भूमि पर से उठकर खाट पर बैठ गया। स्त्री ने घर में एक तैयार किया हुआ बछड़ा था। स्त्री के घर में एक तैयार किया हुआ बछड़ा था। उसने फुर्ती करके उसे मारा और आटा लेकर गूंधा और अख़मीरी रोटी बनाकर शाऊल और उसके सेवकों के आगे लाई और उन्होंने खाया। तब वे उठकर उसी रात चले गए। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, 2 years बाइबल रीडिंग प्लान। मार्क 5 चैप्टर 21 से 34 वर्स, लेविटिकस 26 चैप्टर। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। मरकुस रचित सुसमाचार 5 अध्याय 21 वचन से 34 वचन तक। लैव्य व्यवस्था 26 अध्याय। जब हम अकेले में बैठकर इन बाइबल रीडिंग को 2 साल के बाइबल रीडिंग के वचनों को पढ़ेंगे तो हमने उसमें से परमेश्वर हमको अगर कुछ सुधार लाने के लिए, बदलाव लाने के लिए या हमारे जीवन में कुछ प्रकाशन देने के लिए, सीखने के लिए देता है वचन, उसको हमने लिख कर नोट्स बनाना है और उसके अनुसार हमारे जीवन में वो वचनों को हमने चलना है। हम जब ऐसा करेंगे तो 2 साल के अंत में हम देखेंगे कि परमेश्वर के वचन से ढला हुआ व्यक्ति होकर हम चलते हुए आए हैं और हमारे अंदर वो अभ्यास हो जाएगा परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने का। यह अभ्यास परमेश्वर के काम करने में हमको उपयोग का बर्तन बनाए परमेश्वर के हाथों में देगा। ये हमारे लिए बहुत लाभदायी रहेगा और परमेश्वर का यह लाभ हमने उठाना है। यह करने के लिए हमें अनुग्रह मिला है, हमने ज़रूर इसका लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।